जिससे तो कुछ दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं था पाकिस्तानियों को कि यार दुनिया में क्या क्या सहूलतें गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ देना। हमारी आवाम तो बहुत ही सस्ती चीज़ों में खुश थी, आम सी चीज़ों में। इनके घर में नलके में पानी आता है, इनको बिजली टाइम पे मिल रही हो, इनकी सड़कें बन जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है दिल्ली मिनी मेट्रो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है दिल्लीज न्यू मिनी मेट्रो अंडर द पार्लियामेंट। सो स्टार्ट करते हैं। New Delhi, the capital of India. This city already has one of the most efficient metro networks in the world. 9 lines and 3 more coming up. The Delhi Metro is way ahead of what other Indian cities can even imagine. To properly link the Secretariat, another ambitious project is being taken up. The authorities are coming up with a small underground metro line under the Central Vista. The project will be implemented under the Central Vista Redevelopment Project of the Government of India. Let's call it the Central Vista Metro. Metros often have 2 parallel tracks for bidirectional operations. But the Central Vista Metro is expected to make a single line ring underneath the Secretariat complexes. 4 new stations are expected to come up, joining the Central Vista Metro with the existing Central Secretariat Metro station, providing connectivity to the Yellow Line and the Violet Line. Small 3-car trains are expected to roll through the tunnels, which may carry 20,000 passengers every hour during peak office time. These trains will take a little over 10 minutes to cover the 3-kilometer loop. The tunnel is expected to follow the alignment of Dr. Rajendra Prasad Road and the Rajpath, with stations near Vigyan Bhavan, Shastri Bhavan and Raksha Bhavan. Automated People Mover is a fully automatic semi-metro system that is often used in small enclosed places like airport terminals to transport a considerable number of passengers. Delhi Metro might adopt this system to prepare the Central Vista Metro, as it is a fast and cheap alternative option for metros. A similar thing is already being worked on at the Indira Gandhi International Airport. For the Central Vista Metro, basic civil structures will be constructed by the CPWD, whereas all other works, including the DPR, signaling, finishing, trains, etc., will be managed by DMRC. DMRC is gearing up to sit with the DPR. Once ready, the project may take a couple of years to be built. For more updates on infrastructure projects, please subscribe to our channel MRB. Have a nice day. जी जनाब, बहुत आला, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अपकमिंग प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अभी स्टार्ट होगा इस पे। और दिल्ली के हवाले से हमने ये बहुत बार सुना है कि दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो वैसे ही दुनिया का बेहतरीन तरीन नेटवर्क है। और अब हम सुन रहे हैं कि एक मिनी मेट्रो भी चलाई जाएगी जो तमाम पार्लियामेंट से आएगी। तो आपको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? अच्छा, ये और तरक्की की तरफ एक और कदम है। ये मिनी मेट्रो एक तरह से दिल्ली के अंदर अंदर चल रही है, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि शायद बहुत बड़ा एक्सपेंस हो गया, बहुत बड़े ख़र्चा होगा, बहुत ये होगा। लेकिन आप ये देखें कि इतना ये दूर की सोचते हैं कि अभी तो इन्वेस्टमेंट है, सही, ये प्रॉफिट में है एक तरह से। बिल्कुल। वो ऐसे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आ रहे होते हैं, एक ऑफिस में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, आपको पता है बाकायदा ट्रांसपोर्ट की कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं। आपने उनकी गाड़ियाँ बुक कर दी जाती हैं कि आपने फ़लाने दिल्ली के इलाकों से, फ़लाने इलाकों से हमारे मुलाजिमों को उठाना है और आपने दफ्तर लेके आना है, कन्विंस देते हैं ना, ठीक है। और 5-6 बजे वापस छुट्टी होती है, लेके जाना है। तो आप, अच्छा मज़े की बात है, एक बस आपने बुक की हुई है, एक हाईएक्स आपने बुक की हुई है, उसका और कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन फारिग बैठी रहेगी, सही, पूरी गाड़ी। क्यों? सैलरी उठाएगी। ऐसा है भी, सही, हमारे यहाँ भी है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, आप अगर एक चंद पॉइंट्स शहर के अंदर से एक मेट्रो गुजार दी और जो भी मुलाजिम है उसमें आ रहे हैं, ठीक है ना, और आके आपके पार्लियामेंट तक आ रहे हैं, तो आप खुद बताएं, अच्छा वो पब्लिक के लिए भी यूज़ हो रही है, बिल्कुल 100%। तो आप इसका बेनिफिट्स बताएं कितना लॉन्ग टर्म। बहुत ज़्यादा है ये। मुझे 2 बातें थोड़ी सी यूनिक भी लगी और समझ भी नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया। एक तो अंडरग्राउंड है,
ठीक है, टोटल पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड रखा गया है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि मेट्रो के जो रोड्स होते हैं, जो जिसके ऊपर चलती है, वो जो ट्रैक्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इन्होंने कहा कि हमने रिंग रखे हैं, तो आप बताएं इसके पीछे क्या वजह है? ये रिंग मतलब? रिंग यानी कि गोल, लेकिन है तो सीधे ना, पैरेलल तो मतलब चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं ना, साथ में तो वो कह चलते रहे हैं। पैरेलल नहीं रखे गए, इसके रिंग में रखे गए। देखें दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं, फिर आगे जाके वो टर्न हो रही है, फिर वापसी घूम रही है। तो रिंग का मतलब है कि उसका जो पूरा सर्कल है ना, यानी पूरी मेट्रो, मिनी मेट्रो कह रहे हैं, मिनी वो मेट्रो पूरी राउंड घूम रही है। सही है, ये रिंग ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन पैरेलल तो चलते ही है ना, सही, पैरेलल तो चलती रहेगी, यानी कि लेकिन ये बहुत लंबी, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, उस तरह से दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के। अच्छा, अंडरग्राउंड इसलिए है कि आपने बेशुमार वीडियोस में सुना है कि दिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। दिल्ली में आपके पास जगह ही नहीं है, हाँ। आपके पास जगह ही नहीं, तो आप अपनी जो मिनी मेट्रो चलाओगे कहाँ से चलाएंगे? ठीक है, जब तक वो अंडरग्राउंड नहीं होगा। लेकिन काम में टाइम लगेगा काफ़ी, है ना? अच्छा, काफ़ी मुझे लगता है मेहनत कश काम रहेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड पूरा बनाना, उसके बाद पूरा सिस्टम करना, फिर मेट्रो को चलाना। तो इसमें अभी तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी तो एक तरीके से स्टार्टिंग है, ठीक है ना, अभी एंडिंग तक जाते जाते मुझे लग रहा है कि फिर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर हमें देखने को मिलेगी कि जी मिनी मेट्रो भी दिल्ली में चल रही है। लेकिन इसके बाद जो आपने कहा कि इंसान बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत अच्छी सुविधा आ जाएगी, बहुत सहूलत हो जाएगी। और फिर जो सरकारी कर्मचारी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनकी तरफ ही आ रही थी, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो उसके करीब रहते होंगे। और कईयों को कहा जाएगा सबसे पहले तो ये वहाँ उन इलाकों से। अच्छा, सरकारी का एक और का मसला भी है, सरकारी मुलाजमीन का एक और वो भी होता है कि अक्सर सरकारी मुलाजिमों का ये मैंने देखा है कि बाकायदा सरकारी मुलाजिमों के लिए अलग कॉलोनीज़ होती हैं। अच्छा, यानी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ PTCL है, जैसे हमारे यहाँ PIA है, तो PIA जहाँ पर है एयरपोर्ट के साथ ही इनकी बहुत बड़ी कॉलोनी, जहाँ पर इनकी फैमिलीज भी रहती हैं, जिसको कॉटेजेस भी कहते हैं, मतलब क्वार्टर्स कहते हैं, क्वार्टर्स कहते हैं, सरकारी क्वार्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो होता है ना, उनका जो स्टाफ होता है उसके सामने ही उनके क्वार्टर्स बना दिए जाते हैं, वहाँ पे उनकी फैमिलीज होती है। तो अव्वल तो ये चीज़ बच जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ से ये गुजर रही होगी तो लाजमी कोई ना कोई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे सरकारी मुलाजिमीन को वहाँ से पिक करना, फिर छोड़ना, फिर ड्रॉप करना। बेहतरीन आइडिया है, बेहतरीन ही लॉन्ग टर्म के लिए अपने कंट्री की, अपने मुल्क की बचत है। क्या सोच है आप लोगों की, क्या विजन है, क्या मतलब है कि पैसा बचाने के हवाले से। अच्छा, पैसा भी बचा, साथ साथ आपने सहूलत भी दे दी। बिल्कुल, आपने कहीं जैसे शहर के बीच में से ये नीचे से चल रही है, तो आपने शहर के ऊपर से लोड जो था वो भी कम किया। मेट्रो है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक है। अच्छा, बोलबाला कितना होगा कि जी जिनकी गवर्नेंस में ये हो रहा है, तो उनकी भी कितना लोग उनको कितना सराहेंगे कि जी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमारे दिल्ली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा हमें ज़्यादा शिकायत रहती है अपने मिनिस्टर्स से कि कराची के लिए आपने कुछ नहीं किया, कराची के लिए आप एक प्रोजेक्ट भी कर देते तो हम आपको सपोर्ट करते। जैसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं सबसे कह रही हूँ, लेकिन देखिए दिल्ली वालों को कितनी खुशी होगी कि हमारे दिल्ली में इतने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ऑलरेडी दिल्ली इतना अच्छा है, मेट्रो के हवाले से इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मज़ीद उसको मजबूत तर बनाया जा रहा है। पता है आज मुझे क्या ख्याल आ रहा था? क्या? एक तो ये बात थोड़ी कंप्लीट कर दूँ कि पॉल्यूशन के हवाले से भी दिल्ली में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी अंडरग्राउंड और इलेक्ट्रिक। अच्छा, मैं ये सोच रहा था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानी जो है एक गर्लफ्रेंड हुकूमत जो है उसकी, थोड़ा सा समझिएगा बात को, आता हूँ अभी बात पे। ये ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो बहुत सस्ते में पटने वाली थी। मिसाल के तौर पे ये बिजली, पानी और फूड, चंद चीज़ों पे ही ये पट जाने वाली थी। ये बेचारी खुश रहती, जिससे तो कुछ दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं था पाकिस्तानियों को कि यार दुनिया में क्या क्या सहूलतें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ देना। हमारी आवाम तो बहुत ही सस्ती चीज़ों में खुश थी, आम सी चीज़ों में। इनके घर में नलके में पानी आता है, इनको बिजली टाइम पे मिल रही हो, इनकी सड़कें बन जाएं, चंद चीज़ें छोटी छोटी। ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, बेहतरीन किस्म का हमारा शहर हो जाए, हमारे शहर में दूध की नहरें बह जाएँ, हमारे शहर में मेट्रो चल रही है, हमारे शहर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, इतने बड़े बड़े बेहतरीन हॉस्पिटल बन गए हैं, ये हो गया। ये तो बहुत ही कम चीज़ों में ही खुश होने वाली कौम थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इतने सालों में, 75 सालों में
क्या इस गर्लफ्रेंड को कोई भी एक हुकूमत ऐसी नहीं आई जो इसको खुश रख पाती? यानी इसकी ये छोटी छोटी ज़रूरत भी नहीं पूरी कर पाई। इस आवाम की हमारी हुकूमत ने मामूली ख्वाहिशें भी पूरी नहीं की। अच्छा, तो ये आप हुकूमत और आवाम का कुछ रिलेशन बता रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। 75 सालों में पाकिस्तान जब नहीं कि- कह सकते, हुकूमत जो आई उसको हाँ। कह सकते हैं कि वो और वो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने अरसे में हम इस छोटी सी चीज़ को भी खुशी नहीं दे सके आवाम को। छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे अच्छा, सके। सारी बात ये है शऊर की है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर बताया गया कि हमारी गाड़ियों में एयर बैग्स नहीं हुआ करते, तो वहाँ पे एक इंडियन ने कमेंट किया हुआ था कि अगर हमारी गाड़ियों में एयर बैग्स ना हो ना तो हम इनका सत्यानाश करते हैं, इनका मतलब बर्बाद करते हैं, इनको मार के इनको गंजा करते हैं कि एयर बैग्स कैसे नहीं है। तो बात सारी ये है, आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि हमें वो भी जो हम बेसिक नीड्स भी चाहते थे, तो वो कौन है? मैं ये कहूँगी कि वो ये कह रहे हैं कि एक एयर बैग्स नहीं मिलते तो हम उनके सर खोल देते। तो मैं ये कहूँगी उनको इतना शऊर है, इतना पता है कि क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए। हमने इतना छोटा सोचा, और जो छोटा सोचा वो छोटा भी हमें नहीं मिला। तो हमने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान हम यहाँ देखते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं, हम इंडिया को आत्मनिर्भर देखते हैं, हम इंडिया को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, हम इंडिया को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, हम हर चीज़ खुद बनाना चाहते हैं। हम कभी ऐसी सोच रखते ही नहीं ना, हम हमेशा छोटे ही तो सोचते हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रूफ मिल गया, लाइट जा चुकी है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी आवाम इसी में खुश थी। यार लाइट नहीं जाती, यार पानी आता, बस। अच्छा, हम घर खरीदने जाते हैं, गैस आता है, पानी आता है, ये पूछते हैं। मतलब हम इस 3-4 चीज़ों में खुश रहने वाली कौम थी। हमारी छोटी सी प्यारी सी कौम थी, जैसे आपने कहा ना कि सोच ही बड़ी नहीं थी। तो छोटी सोच थी, तो ये उनकी तो बेनिफिट में था। किसके बेनिफिट में था? हुक्मरानों के। वो भी पूरा नहीं नहीं, उन्होंने फ़ायदा इस चीज़ का उठाया कि शऊर नहीं है, इनको पता नहीं है क्या कर लेंगे, ये तो बस यहीं तक महदूद है, इनको इतना दे दो। नहीं दिया ना, वो भी मैं यही सब्सिडी, कभी कभी सब्सिडी दे दो, कभी कभी चावल आटा थोड़ा सस्ता कर दो, खुश हो जाएंगे हमारी गवर्नेंस। कहाँ किया? कभी कभी करते हैं ना, जैसे इमरान खान ने किया। आपको बिजली कहाँ मिल रही है? बिजली इमरान खान का दौर, मैं सच बताऊं, कैसे अंधेरे में मैं जो हक लगती मैं अच्छा बात दिख रहा हूँ, मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ, मैं हक लगती बात बोलूँगी। इमरान खान की गवर्नेंस में मैं एक बात के लिए तालियां बजाऊंगी कि उनके दौरे हुकूमत में बिजली की इतनी शॉर्टेज, इतनी तंगी नहीं थी जितनी अब। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ तो 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती थी। सुन ले तो मैं कुछ बोल दूँ। हमारे यहाँ मसला ये है कि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि जैसे ही किसी भी दौर में गर्मी आती है ना तो बिजली ज़्यादा जाती है। तो इमरान खान ने 3 साल तक हुकूमत करी तो गर्मी नहीं है। पूरी बात तो सुने ना, तो आपको ऐसा, पूरी बात तो सुने, आपको ऐसा इस वक्त जब हम फील कर रहे हैं ना, इस वक्त जब हम हाजिर होते हैं, हमें वो याद रहता है। पिछला थोड़ा सा इतना रिमाइंड नहीं रहता। तो ये होता है कि उन दिनों में भी जब गर्मी हुई होगी, बिजली गई होगी, लेकिन अभी इत्तफाक ऐसा हुआ है कि सर्दियों से गर्मियों की तरफ आए हम। पिछला रमज़ान महीना गुजरा है, रमज़ान में हर गवर्नमेंट बिजली थोड़ी बेहतर देती है। 1 महीना नमाज़ों का टाइम होता है, रोज़े का टाइम होता है, तो ज़्यादा टाइम बिजली मिलती है। तो ये कि जैसे ही गर्मी आई है तो बिजली ज़्यादा जाने लगी। अच्छा, ये हर दफ़ा ही होता है। मैं भूल गई हूँ, लेकिन हर इंसान के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बिजली का इतना टेंशन नहीं था। चले मैं भूल गई हूँ, बाकी सब भी भूल गए। सब यही कह रहे हैं कि शॉर्टेज, मैंने आपको बताया भी था आई थिंक कि घर में बिल्कुल भी बिजली नहीं जाती। आप कह रहे थे हमारी तरफ जा रही है अभी। हाँ ना, तो जैसे गर्मियाँ शुरू हुई ज़्यादा जाने लग गई। अभी आपके बीच में भी जा रही थी, आप कह रहे थे। अच्छा, अब हमारी नहीं जा रही थी। अच्छा, अब इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है, अब इस वक्त बिजली जा रही है ना? अब बहुत ज़्यादा जा रही है। अब तो आ रही है, जा नहीं रही है। 1 घंटे के लिए आ रही है, 1.5 घंटे के लिए आ रही है, बाकी जनरेटर से काम चल रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि गर्मी में ना बिजली की ज़रूरत मुल्क को पड़ती है। हाँ, मतलब 1 घंटे के लिए नहीं आती थी, अभी भी कैसे एग्री करूँ, आती थी। आप सही कह रहे हैं, कभी कभार चली जाया करती थी, लेकिन 1 घंटे के लिए सिर्फ वो बिजली 24 घंटे में से या 2 घंटे के लिए तो इंसान को फील होगा ना, ये तो बहुत फील होगा। मैं कह रहा हूँ गर्मियों में मज़ीद जाने लग जाती है। 3.5 साल में गर्मियाँ आई है 3 बार। हाँ, तो अच्छा, आने वाले वक्त में ना आप अपनी जगह भी एक तरह से सही हैं कि इसकी वजह ये भी है कि आने वाले वक्त में मजीद शॉर्टेजेस बढ़ती जा रही है। बढ़ रहा है, सही कह रहे हैं आप। बिजली का बहरान मजीद बढ़ रहा है, हर चीज़ तबाही की तरफ जा रही है। आप सही कह रहे हैं, ये चीज़ से मैं एग्री करूँगी। तो ये मामला है। तो आने वाले वक्त में एक बहुत ही खुशी की खबर है, बिल्कुल, मिनी मेट्रो। तो दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।